Hi and welcome. I'm sitting at the parking lot here at the Junagadh Agriculture University where Vishant Mehta's father. He's the one that donated a kidney to Vishant. He was a young lad. The father, I hope to meet soon. He's also looking to see if he can do a Zoom call with his students. He's a professor here and he's spoken to his director to see if we can do a Zoom call meeting with the kids. Now all of this is just unraveling here. I had no idea this was happening, and Vishant, as he spoke to me, also said that he's trying to get a hotel here to see if their staff can be assembled to listen to my story. So Junagadh is unraveling, and I'm looking forward to meeting Vishant's father and telling you his story of being a kidney donor to Vishant. Stand by. So that's Vishant right in front of me on the scooter, not the guy who just passed you on the motorcycle, but the one in front, and now leading me to his dad. He's already pre-warned me that his dad is pretty shy, but hopefully I can get through to him. Hopefully I can get him to understand the importance of telling the world the story of a kidney donor, so that there are more people who are inspired to save somebody they love. So let's see what happens. A lovely campus here at Junagadh. This is the Junagadh Agricultural University. Now if the Agricultural University didn't have landscaping, then what else would, huh? This is lovely. As my wife would say, beautiful. So we're heading towards the College of Agricultural Tech and Engineering. So Vishant's dad is actually an engineer and teaching agricultural engineering. Of course, every university has massive grounds. Play is an important part of education. You've got to keep the body, mind, and soul engaged. And play certainly does all three of them. This campus is massive, pretty, a lot of experimental farms, plant technology. This sounds like a really good place to learn a few things or two about farming for all the potential farmers. I hope I wish all of these agricultural universities do an executive training course for wannabe urban farmers who are beginning to buy farmland and wanting to retire into a life of farming. It's important to get this kind of knowledge. And I'm going to look at, I know Bangalore, where I live, has an agricultural university. Maybe I will talk to them and see if they can put up a course like that for guys like me. So we're entering the Department of Farm, Machinery and Power. So when you're in a farm, you need machines like tractors, for example. And how do you employ them? How do you deploy them? I guess we'll find out what Mr. Mehta teaches over here. So this is Tarun Mehta, a professor here at the आपका डिपार्टमेंट का नाम बताइए. कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जूनागढ़. So Tarun is actually a kidney donor just like me, and he's given a kidney to his son Vishant. Vishant is studying to be a chartered accountant and studying for his exams that are looming and not very far away. तो जब आपको पता चला कि आप इनको दे सकते हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा था? नहीं, मेरे दिमाग में वो था कि नहीं, मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं हो सके उतना लंबा खींच के दूँ, ताकि ये नहीं, उसके क्या मतलब था कि भाई लोग बोलते थे कि ट्रांसप्लांट के बाद 15 साल 20 साल के बाद वापस वो साइकिल हो जाती है, किडनी रिजेक्ट हो जाती है इनको. हाँ, रेसिपिएंट को. हाँ, रेसिपिएंट को, मतलब ऐसा कुछ रेशियो है. लेकिन मैडम ने वहाँ बोला कि 25, अब तो हम 25 साल बोल रहे हैं. ठीक है, पहले कम बोलते थे, लेकिन अभी दवाई ऐसी आ गई है, मेडिसिन, तो 25 साल. ठीक है, तो आप
हर समय इन्हीं की सोच रहे थे? हाँ बाप हो तो सोचेंगे हाँ ही, हाँ। पर अपने बारे में क्या सोचा? नहीं, मुझे डर भी लगा हाँ, उसके बारे में मुझे बात करना है, भाई। क्योंकि ये जो हाँ मानसिक स्थिति है, हाँ जिनको डोनेट करना है, हाँ। उनके मन में जो मानसिक स्थिति होती है वो हर किसी को होता है। नहीं, मुझे था डर, तो लेकिन किस बात का डर था? क्या क्या गुजर रही थी नहीं, तुम्हारे तो फिर दिमाग में? मेरी एक ही रहेगी, मुझे डायलिसिस करना पड़ेगा, ये वो। फिर हमारा एक हम जैन धर्म फॉलो करते हैं, उसमें एक हमारा महाराज है जिसको मैं बहुत मानता हूँ। तो वहाँ डिसीजन अहमदाबाद लेने डिस्कस हुआ, फिर मैं सीधा उसके पास गया। तो अहमदाबाद के आसपास में ही विचरण कर रहे थे। मैं बोला साहब जी ऐसा है। तो कौन गुरु का नाम क्या है? हेमवल्लभ महाराज साहब, ओके। जैन के हैं। तो मैंने बोला ऐसा है। तो उसने एक ही वर्ड बोला कि क्या करने से उसको शांति मिलेगी, पेरिटोनियल से मिलेगी या ट्रांसप्लांट से मिलेगी? मैंने बोला ट्रांसप्लांट से मिलेगी, तो करवा लो ये। फिर मेरा डिसीजन पक्का हो गया। तो गुरु महाराज ने आपको हौसला दिया कि हाँ, करो, कुछ नहीं होगा। हाँ, उसको जिसमें शांति मिले वो करो। मतलब पर आपका क्या उसमें? आपको किस में शांति मिलती? मुझे जो बाय ह्यूमन है वो स्वार्थी तो है ही, तो मुझे था, लेकिन बहुत ज़्यादा फिर वहाँ मेरा उसने बोल दिया कि भाई उसमें जिसको शांति समाधि में, वो लोग समाधि शब्द यूज़ करते हैं कि पेशेंट को जिसमें समाधि मिले वो आप करो। तो मैंने बोला इसमें समझ तो आप कर लो। फिर मेरा डर दूर नहीं हुआ? डर दूर हुआ कि नहीं? हाँ, नहीं, दर्द उस टाइम दूर हो गया, लेकिन मेरी हिस्ट्री कुछ और है। हो गया ट्रांसप्लांट। कब हुआ ट्रांसप्लांट? 20 जून 2019. 20th जून 2019। हाँ, मतलब Within 30 days. It is one of the fastest, मतलब process. It was one of the fastest process for a transplant. कि फर्स्ट डायलिसिस 21 में और 30 दिन के अंदर ही आपका ट्रांसप्लांट हो गया। मतलब पापा ने प्रोसेस में इतनी जल्दी इतनी मेहनत की कि 30 दिन में मेरा ट्रांसप्लांट हो गया। तो डर नहीं था गुरु महाराज के बाद? हाँ, लेकिन फिर क्या ट्रांसप्लांट के बाद क्या हुआ कि मेरा क्रिएटिनिन 1.6 आया। आपका? हाँ। तो मैं डर गया। 2-3 बार करवाया, 6 महीने तक करवाया। हाँ। बीच बीच क्यों करवाया? डॉक्टर ने बोला था? नहीं, मैं खुद डर गया था। आपके डर से? मैं ओके। खुद डर गया था। तो अभी भी डरा हुआ ही हूँ, लेकिन अब इतना डर नहीं है, क्योंकि लास्ट में किस बात का डर है? मतलब मेरा क्रिएटिन बढ़ जाएगा तो फिर तो मुझे ट्रांसप्लांट डायलिसिस पे चढ़ना पड़ेगा। ओके। ठीक है। तो 1.6 फिर मैंने 6 महीना हुआ ट्रांसप्लांट के, उसके बाद एक करवाया था लास्ट डिसम्बर 19 में। डिसम्बर 19 में करवाया रिपोर्ट, वो 1.6 था। फिर मैंने बोला कि अब मैं रिपोर्ट नहीं करना, जब मुझे ज़रूरत लगेगी तब मैं करवाऊंगा। ये मेरे पीछे पड़ा है कि आप करवाओ, लेकिन मेरे को नहीं, वो रिपोर्ट ज्यादा देखने से ज्यादा डर लगता है। देखो ही नहीं। देखो नहीं। Okay. मुझे कुछ बॉडी में प्रॉब्लम दिखेगा तब मैं करूंगा। हाँ, सिम्टम्स ही नहीं है तो क्या क्यों करूंगा? हाँ, तो ये पीछे पड़ा रहता है, लेकिन मेरे को नहीं करना है। आप पीछे क्यों पड़े रहते हो? कि एक बार हमें तसल्ली हो जाए कि नॉर्मल ये, एक बार ईयरली एक चेकअप हो जाना चाहिए ताकि तसल्ली रहे कि सब नॉर्मल है। और नॉर्मल ना हो तो हम उसका कुछ सॉल्यूशन ला सकते हैं, इसलिए। तो आपको ऐसा लगता है कि डैड ने मुझे दिया और अभी उनकी देखभाल मेरी जिम्मेदारी है? हाँ। इसीलिए आपको करवाना चाह रहे हो? हाँ, कि मेरे कारण उनको कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मुझे डोनेट किया तो उनको तो कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जायज़ है वो। तो फिर बंद कर दिया आप? अब 1 साल 1.25 साल हो गए मैंने रिपोर्ट नहीं करवाई। ठीक है। तो अभी आपकी ज़िंदगी कैसी है? पहले से सेम है या सेम ही है? वही खाते हो, वही पीते हो? वही। आपकी एक्टिविटीज़ ज़्यादा हुआ है? कुछ फर्क नहीं पड़ा है। आपको नहीं लगता है कि अभी फिटनेस में लग जाए? नहीं, कुछ नहीं करना है आपको फिटनेस, वॉकिंग या वॉकिंग की बात नहीं, वो तो करेंगे, लेकिन मुझे कुछ मतलब ऐसी कोई मतलब वो ज़्यादा वो नहीं लग रहा है कि मैं बीमार हूँ। हाँ, तो इसलिए नहीं करने के बाद जब रिपोर्ट बढ़ रहे थे तो जुलाई, अगस्त, सितंबर। आपके हिसाब से क्रिएटिन कितनी होनी चाहिए थी? मतलब जो नॉर्मल रेंज दिखती है रिपोर्ट में 1.2, 1.1 से बिलो वो होनी चाहिए। जो मेरी ट्रांसप्लांट के पहले थी वो होनी चाहिए। तो मेरा क्रिएटिन 1.3 है। अच्छा।
और 1.3 पे ही अटका हुआ है। हाँ, नहीं मेरा 1.6। क्योंकि एक किडनी 2 का काम कर रही है ना अभी, तो वो जायज नहीं फिर उस टाइम ये ऐसा हो रहा था, मैं डर गया था, तो मैडम ने मेरा वो ग्राफ डॉपलर भी करवा लिया, तो उसमें कुछ नहीं है, वो क्लियर आया ग्राफ डॉपलर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मेरी जो किडनी दूसरी काम कर रही है वो सही है। फिर कभी कभी डर आता है दिमाग में, फिर निकल जाता है, लेकिन अगर ये रिपोर्ट का नाम लेता है ना, सिर्फ रिपोर्ट के नाम से उनका घबराहट बढ़ जाता है, टेंशन बढ़ जाता है, वो डिप्रेस हो जाता है। मैं रिपोर्ट नहीं करवाना है, तो मैं रिपोर्ट नहीं करवाता। उनका रिपोर्ट हो या मेरा, किसी का भी फैमिली हाँ, इसका भी रिपोर्ट अगर अभी भी करवाते हैं, तो जब तक आता नहीं है ना, ब्लड देने के बाद जब रिपोर्ट आता है, वो पीरियड मेरा वो थोड़ा, मैं थोड़ा वैसे ही मेरा स्वभाव है वो स्वाभाविक ऐसा है, तो क्या करें उसमें। तो वहाँ मैडम ने भी बोला था कि भाई आप इसके पीछे इतने क्यों पड़े हो, मतलब ये आप इतनी क्यों टेंशन लेते हो, क्रिएटिन बढ़ा है कम हुआ है, वो मेरा है, मुझे देखना है, यही आप क्यों फिक्र करते हो। और जब तक जीवोगे तब तक टेंशन तो आएगी दुनिया।